Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ماذا ترى فانظر ماذا ترى صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اب میں یہ قربانی کا جو وقت ہے، کس وقت میں قربانی کی جاتی ہے، بقرعید کب ہے، کب شروع ہوتی ہے، اس کی بارے میں باتیں کرنا چاہوں گا۔ میرے محترم دوستوں، یہ قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جو یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربانی کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کا قربانی کر رہے ہیں، تو پھر بیٹا کو بھی بتاتے اور بیٹا کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا، میں تجھے قربانی کرنے میں تجھے قربانی کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ اور بیٹا کہتے ہیں اے میرے والد، آپ وہ کر دیں جو کچھ آپ نے دیکھے ہیں، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا بردبار، کیا حلیم اولاد تھے، کیا صبر والے اولاد تھے۔ اللہ کے لیے، قربانی کے لیے اللہ کی سفارت کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی سفارت کر دیے، تاکہ اللہ رب العزت ریاکاری سے بھی بچا لے۔ ستجدنی انشاءاللہ کہہ کر ہر قسم کے احتمال کو دور کر دی ہے کہ میں نے اللہ کی اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ نے اگر چاہا تو یقیناً مجھے اپنے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو میرے دوستوں، آج میں یہ بات کرنا چاہوں کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک شام، یعنی آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر 11ویں دن، پھر 12ویں تاریخ کو سب سے پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر اس کی بعد 11 کو، پھر اس کی بعد 12 کو۔ لیکن اکثر لوگ ہمارے یہاں نہ کام میں جا رہے ہوتے، نہ دھندے میں، نہ اور کوئی۔ اچھا ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پہلے عید کو اپنا خود قربانی کرنے، اپنا مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور قربانی کی جانور بھی لیے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ یقیناً ہے، اگر ان کو موقع ملے، دن میں 4 بجے بھی آ جائے تو وہ قربانی کر لے تو افضل ہے۔ اور اگر بولتے کہ ہم تھکے ہوئے قربانی کرتے ہوئے آیا، اب ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، تو دوسرا دن کریں، ورنہ پھر تیسرا دن کریں، لیکن پہلا دن اولا افضل ہے۔ اب میرے دوستوں مسئلہ کیا ہے کہ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ اب بعض لوگ فجر کی بعد ہی قربانی کر دیتے ہیں۔ نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، گاؤں دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہیں، وہاں صبح فجر کی بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کی دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے، وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں شہر ہو تو اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ جانور ذبح کرنے کے لیے عید کی نماز ضروری ہے شہر کے اندر۔ اور اگر گاؤں دیہات ایسے ہیں ان کی مواصلات کی کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ گاؤں دیہات میں ہیں، کوئی راستہ نہیں، وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہیں، ایسے جنگلات ہے اور ایسی جگہوں میں صبح
फजर की बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं। अगर शहरी आदमी खुद तो शहर में मौजूद है मगर कुर्बानी की जानवर देहात में बेच दे और वहां सुबह सादिक की बात कुर्बानी हो जाए तो दुरुस्त है। हाँ, बात समझ में आ गई ये बातें भी आपको। शहरी आदमी लेकिन जो जानवर है वो देहात में भेजा हुआ है कि भाई आप लोग कुर्बानी कर लेना। अब वो देहात वाले, वहां नमाज की इंतजाम नहीं है, शहर नहीं है, वो देहात वाली इलाका है, गांव देहात है, वहां कुर्बानी ईद की नमाजें नहीं होती हैं। तो ऐसे जगह में अगर वो कुर्बानी जानवर जो भेजे हुए कुर्बानी सुबह की भी अगर कर ले, सुबह सादिक की बाद कुर्बानी हो जाएगा। सुबह सादिक की बाद अगर कुर्बानी कर ले तो कुर्बानी हो जाएगा। अब आइए मेरे दोस्तों चौथे मसला, इन 3 दिनों के दौरान रात की वक्त कुर्बानी करना भी जायज है। अगर बाद लोग पूछते हैं यार रात को कुर्बानी करें, तो भाई रात को भी कुर्बानी कर सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है, रात को कुर्बानी करना बेहतर नहीं है। इन 3 दिनों में कुर्बानी की जाए। अगर इन 3 दिनों के अंदर कोई मुसाफिर अपने वतन पहुंच गया हो, कोई मुसाफिर इन 3 दिनों में, यानी वो सऊदीया से पाकिस्तान में पहुंच गए हो और उसने कहीं इकामत की नीयत कर ली और वो साहिब निसाब है तो उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उन 3 दिनों के अंदर कोई मुसाफिर अपने वतन पहुंच गया, उसने कहीं इकामत की नीयत कर ली और वो साहिब निसाब भी है तो उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर बंदे सिंध वाले आ गए, भाई सऊदीया में थे पहले, अब वो सिंध में आके पहुंच गए, वहाँ रुके। जब वहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन इकामत की 15 दिन की उसने नियत भी कर ली कि हमें यहाँ रहना है, हमें 2-4 दिन के 1 महीना की, भी वहाँ से जब वापस ही आते 1 महीना की टिकट लेकर ही आते या 2 महीना की टिकट या 3 महीना की टिकट लेकर आ रहे होती हैं और वो इस नीयत से आते हैं कि मैं 2-4 महीना घर में रुक कर फिर जाऊँगा, अपने वतन पहुँच गए हैं, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जिस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब है उसके लिए इन दिनों में कुर्बानी का जानवर ज़बह करना ही लाजिम है। अगर इतनी रकम सदका खैरात कर दे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी, यह शख्स महज गुनाहगार होगा, यह शख्स गुनाहगार होगा, कुर्बानी ना करने का, कुर्बानी को तर्क करने का गुनाहगार होंगे। और जिस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब थी उन 3 दिनों में उसने कुर्बानी नहीं की, उसकी बात कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। उस शख्स को तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए क्योंकि उसने तो कुर्बानी को तर्क की और कुर्बानी की जानवर की मालियत सदका खैरात कर दे, वो इतना सदका खैरात कर दे और तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अब आइए मेरे दोस्तों, एक शख्स ने कुर्बानी का जानवर बंद रखा था मगर किसी उज़र की बिना पर कुर्बानी की दिनों में ज़बह नहीं कर सका तो उसका अब सदका कर देना वाजिब है। वो यहाँ नहीं है, अचानक सारे हॉस्पिटल में पहुंच गया, अचानक अब्बा का दिल की बीमार है, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, या उनकी घर में कोई हादसे ऐसे हो गए, कुर्बानी की जानवर घर में बंधे हुए लोग देख रहे होते हैं, तो क्या करें? तो वो उनको आगे वाले को हुक्म कर दें अपने घर में जो जानवर रखा हुआ तो उसको कुर्बानी करने की, और अगर उसने कुर्बानी नहीं किया तो उसको सदका कर देना वाजिब है उसके ऊपर। ज़बह करके गोश्त खाना दुरुस्त नहीं है क्योंकि सदके की जानवर आपने सदका कर दिया। कुर्बानी की जानवर आपको कुर्बानी करना था, किसी वजह की वजह से आपने जो है ना वहाँ से निकल कर और कहीं दूर चले गए, आपकी कोई उज़र ऐसे पेश आया, अब वो कुर्बानी का इन 3 दिनों में ज़बह नहीं कर पाए तो फिर उसकी सदका करना आपके ऊपर वाजिब है। हाँ, अगर कुर्बानी का जानवर खुद अपने हाथ से ज़बह करना मुस्ताहब है, बेशक ये बात है, बाज़ लोग दुआ की इंतज़ार कर रहे थे कि हमें दुआ नहीं आता है कि मौलवी साहब को बुला लूँ या किसी के इंतज़ार कर रहे होती हैं। मेरे दोस्तों, कुर्बानी की जानवर खुद अपने हाथ से ज़बह करना यह मुस्ताहब है ना। लेकिन जो शख्स ज़बह करना ना जानता हो या किसी वजह से ज़बह ना करना चाहता हो, उससे ज़बह करने वाले के पास मौजूद रहना ज़रूरी, मौजूद रहना बेहतर है। जो ज़बह करने वाले के पास ना मौजूद रहना इसके लिए बेहतर है।
इसी वजह से अगर वो जबा नहीं कर पा रहे या उसकी हिम्मत नहीं है, ये सही जबा नहीं कर पाएंगे या डर जाती हैं बाज़ लोग, तो उन सूरतों में खुद जबा नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से जबा करवाएं, लेकिन वहाँ खुद रहना बेहतर है। कुर्बानी की जानवर जबा करते वक्त ज़बान से नीयत के अल्फाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में नीयत कर लेना काफ़ी है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहा हूँ, फ़लाँ की जानिब से, फ़लाँ की जानिब से, फ़लाँ की जानिब से। मिसाल के तौर पर आपका 4 बेटा और चारों बेटा कमाने वाले, चारों बेटे शादीशुदा हैं और अपने चारों बेटा के नाम से ना कुर्बानी करना चाह रहे हैं, तो आपने कुर्बानी कर लिया। आपने दिल में सिर्फ नियत कर ली कि हमारे फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, और उनके अब्बा का नाम ले लिया, अम्मा का नाम ले ली, यानी उनकी जानिब से, इनकी जानिब से कुर्बानी आप दिल से जो है ना नियत कर लिया, बस काफ़ी है। आप मुंह से, ज़बान से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ दुआएं जो हदीस पाक में मुनक़ुल अगर किसी को याद हो तो उनका पढ़ना भी मुस्तहब है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप छल्ला फेर दें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।